छत्रसाल जीने बाना बांधे, छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए। छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए। 14 लोक में आन चलाए, 14 लोक में आन चलाए, ऐसा द्वंद्व मचाए। छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए। पंडित वेद पुराण पढ़िया, तीनों के डिंभक भाने। कोई दिन चली है काजी की बाजी, फिर हुकुम तले आए। छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए। देवी और देवता छोड़ो, छोड़ो है कुल की आस। देवी और देवता छोड़ी है कुल की आस। किन्हों एक संग साधुन को, किन्हों एक संग साधुन को, जिनको धाम में वास। छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए। छत्रसाल जीने बाना बांधे, निज नाम शरण को आए।
जी आनंद अखंड अपारे शिव सन कादिक आदिक इच्छित शेषन पावत पार मेरे वाला जी शेषन पावे अपार अगम जान के निगम कहावे खोजी खोजी पचिहार मेरे वाला जी खोजी खोजी पचिहारे जानी के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे मेरे वाला जी सो घर आए हमारे त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी सो फंदा निर्वारे वारी वारी जाने अपने पिया पर शोभा मुख न आवे मेरे वाला जी शोभा मुख न आवे सिंहासन आसन बैठारो छत्रसाल गुण गावे मेरे वाला जी महाराजा गुण गावे साकुंडल गुण गावे महाराजा गुण गावे सखी मोरी कांचन थाल चौमुख दीवाला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती जीवावर रानी आनंद अंग उल्लास आनंद अंग उल्लासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोए मंगल रसिक वदन की शोभा निरखता मन मोह निरखता मन मोह सखिया निरत करे और गावे उमंग ताल विरंग झांझ यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार वधावे मुक्ता फल सखिया श्री जिया वर श्याम सुहागे तन मन जीवन सो घर आए हमारे पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नवतन सब पुरियों में उत्तम होई जो धन धन ते मध्य जे पुरी कहावे नवतन जिहनु नाम 14 भुवन में उत्तम जिहा वाला नो विश्राम। तो यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा विराजमान छे आ पावन पतित भूमि श्री 5 नवतनपुरी धाम। અહીંયા શ્રીમન નિજાનંદાચાર્ય સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજ જ્યારે આવ્યા તે સમયથી જ આ ભૂમિ અત્યંત પાવન થયો અને એ પાવન ભૂમિ પતિત પાવન ભૂમિમાં
સદગુરુદેવ ચંદ્રજી મહારાજને જ્યારે અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મ સર્વેશ્વર શ્રી કૃષ્ણજીએ દર્શન આપ્યા છે, દર્શન પશ્ચાત એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, નિજના મંત્ર પ્રાપ્ત થયું છે. નિજના મંત્ર પ્રાપ્ત થતાને સાથે જ અક્ષરાતીત શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એમના હૃદયમાં બિરાજમાન થયા ત્યારે એમનું નામ, એમનું પદવી ચેન્જ થયું છે. આ કયું પદવી મળ્યું ત્યારે? નિજાનંદ. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી શું પદ મળ્યું? નિજાનંદ. ક્યારે? જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ હૃદયમાં બિરાજમાન થયા ત્યારે. અને એ આનંદ સદગુરુદેવ ચંદ્રજી વિચાર કરે, એ આનંદ કોને આપો? અને એ આપવા લાગ્યા. અને એ પરંપરામાં આપ સૌ જાણો છો, આ પાવન ભૂમિમાં જ્યારે મહામતી પ્રાણનાથજી, જ્યારે એમનું નામ મિહિરરાજ ઠાકુર હતો, ઠક્કર પરિવારમાં હતા. મેહરાજ નહીં, મિહિરરાજ એ નામે એ સંસારમાં આવ્યા. એમનું જે આગમનની કહાની છે, કથા છે, એ તો અત્યારે કહી શકાય નહીં. એ તો બીતક હવે આવી રહ્યું છે ત્યારે ખબર પડશે જ. પણ એ મિહિરરાજ જ્યારે સદગુરુદેવ ચંદ્રજી મહારાજની કથા ચર્ચા સાંભળવાની ઈચ્છાથી પહોંચે છે અને મુલાકાત થયું છે કયા ભૂમિમાં? અત્યારે અમે જ્યાં બેઠા છીએ ને આ ભૂમિમાં. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. કેમ કે ઇન્દ્રાવતી અને સુંદરબાઈની અગત્યની મિલન એ પાવન ભૂમિમાં થવાનું હતું. એમ તો જામનગર આખું પાવન ભૂમિ છે, પણ એમાં પણ એ જે ભૂમિ છે જ્યાં અમે અત્યારે બેઠા છીએ, જી હા, વાલાનો વિશ્રામ. આપને ખબર છે વાલાનો વિશ્રામ કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? કોઈ કહેશે? ઉત્તમ 14 ભુવનમાં કેમ કહ્યું? બોલો તો. કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી. કેમ કે આ ભૂમિ સ્વયં રાજી મહારાજ પસંદ કર્યા. અક્ષરાતીત પરબ્રહ્મએ આ ભૂમિ પસંદ કરી. તે પછી જ થોડો પેલા ચુગલીની પ્રસંગ આવ્યો. ચુગલીની પ્રસંગ કરાવી અને સદગુરુને ત્યાંથી લઈને અહીંયા આવ્યા છે. એટલે એ પાવન ભૂમિ કેમ કે અક્ષરાતીતે પસંદ કર્યું. એટલે 14 ભવનમાં ઉત્તમ, જી હા, વાલાનો વિશ્રામ. એટલે જ વાલાનો વિશ્રામ છે. અને એ પાવન ભૂમિમાં જ્યારે મિહિરરાજ આવ્યા, સદગુરુના ચરણમાં સાનિધ્યમાં પહોંચે છે અને એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આપ સૌ જાણો છો 313 જાગનીના ઉપક્રમમાં એ મિહિરરાજ ઠાકુર પણ આવે છે. અને એ જ્યારે પોતાના જાગની બ્રહ્માંડની આગળ વધારવાની વાત કરવા લાગે છે ત્યારે મહામતી પ્રાણનાથજીને સંબોધીને સદગુરુદેવ ચંદ્રજીએ કહ્યું કે 2 સખીઓ પરમધામમાં હસે છે. કેમ કે બાલક જ્યારે અમે પણ બાલક અવસ્થામાં હોઈએ ત્યારે સપના જોઈએ તો શું થાય? सपना का तो रड़वा आवे का तो हंसवा आवे। क्योंकि सपना जब हम देखते हैं तो या बच्चे लोग जब सपना देखते हैं या तो उस समय में हंसते रहेंगे, हंसते हंसते जगेंगे, या तो फिर रोते रोते जगते हैं। तो हंसते हंसते जगने का मतलब ये होता है कि वो कोई सुंदर सपना देख रहा है, और रोते रोते जब जागता है बालक तो समझना चाहिए कि इसने बहुत भयानक सपना देखा है। तो सदगुरुदेव चंद्र जी ने कहा कि 2 सखी परमधाम में हंस रही है, एक सकुमार और दूसरी शाकुंडल। तो ये 2 सखी के साथ में जगाना तो सबको है, सब जाग जाएंगे, लेकिन ये 2 विशेष है, मतलब विशेष घराने में है, विशेष मौज मस्ती में रह रहे हैं, इसलिए इनको जगाना है। तो ये जगाने के लिए श्रीमन निजानंदाचार्य सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने ये अभिभारा महामती प्राणनाथ जी को प्रदान किया, और वो उद्देश्य पूरा करने के लिए ही उन्होंने इस पावन पतित भूमि को प्रणाम करके सदगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके फिर जग में प्रसारित हो गए, ढूंढने निकले। ढूंढते 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 आप सब जानते हैं जीवन के अंतिम पड़ाव में वो पहुंचते हैं पद्मावतीपुरी धाम। और इस पद्मावतीपुरी धाम में आप सब ने देखा अभी कुछ, तो
जब छत्रसाल महाराज के साथ में बात आती है, उनकी बात आती है, तो देवकर्ण भाई का बात आती है। देवकर्ण के साथ में योग मिलन, फिर देवकर्ण के माध्यम से सदगुरु महामती प्राणनाथ जी का वहां आगमन की बात जब छत्रसाल जी श्रवण करते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी अब देश देश में घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई अच्छा कोई क्षेत्रीय राजा मिले, क्योंकि समझाने की बहुत कोशिश की। साम मतलब समानता, साम दाम दंड भेद, इसमें से 3 नीति तो अपनाए लेकिन दंड तो दे नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई दंड देने वाले तो कोई राजा ही होगा। तो राजा को ढूंढने के लिए निकले। राजा ने राहले मर रायण तरु धर्म जाता रे कोई दौड़, इस तरह से उन्होंने जगाने की बहुत कोशिश की। क्षेत्रीत्व के अंदर सोया हुआ हिंदुत्व को जगाने की कोशिश की। तुम अपने आप को राजा समझते हो, कब तक समझोगे? जब राज्य रहेगा तब ना। तुम्हारा राज्य ही नहीं रहेगा, ऐ सारे के सारे मुसलमान बन जाएंगे, फिर राजा किस चीज की, कौन सी सत्ता लेकर बैठोगे? इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की। और राजा कोई जागे नहीं, बितक की बात है, आप सब जानते हैं। कोई भी जागे नहीं, जागने की कोशिश भी नहीं की। एक भाव सिंघाड़ा उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन लीला पूर्ण होने के बाद वो भी चले गए। और अंतिम में आज छत्रसाल महाराज से मुलाकात की बात आती है। छत्रसाल महाराज की बाल्य अवस्था बहुत ही नाजुक अवस्था में थी। मुसलमानों ने अत्याचार, देखिए मुसलमानों की अत्याचार ये हमेशा से रहता है, हमेशा, ये कभी समन होने वाला नहीं है। इसलिए तो मोदी साहब ने इस बार घूस के अंदर घुस के मारा, कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि ये ऐसे ही है, सूर और असुर, देवासुर संग्राम, देव और असुर, दैवासुर विभाग योग, गीता में देव और असुर विभाग ये अलग अलग है। जो असुरी वृत्ति वाले लोग हैं वो कभी सुधरेंगे नहीं, वो कभी सुधरेंगे नहीं, वो दंड के भाषा ही समझते हैं। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने समझाने की बहुत कोशिश की। उनको समझाने के लिए तो उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया है। 6000 चौपाई श्रीमतार्तम सागर वाणी में उनको समझाने के लिए ही है, लेकिन समझने की बात नहीं है। वो दंड के पात्र थे, इसीलिए वो कोई योग्य क्षेत्री को ढूंढ रहे थे। और इधर छत्रसाल महाराज के जीवनी बहुत संग्राम युक्त थे। 4 भाई में ये जो हैं छोटी उम्र में ही इन्होंने देखा इनके पिताजी को मरना पड़ा। आप सब जानते होंगे, मुसलमानों ने घेरा वीर चंपत राय को, अपनी पत्नी को साथ में लेकर वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में छलांग लगाए। लेकिन उस समय में उनको दर्द भी हुआ। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा आपको सुना रहा हूं मैं। कहते हैं कि उस समय में माता, उनकी धर्म पत्नी जो थी, छोटा बच्चा था, तो इन छोटे बच्चे और धर्मपत्नी को लेकर ही यहां से वहां छलांग लगाए थे। लेकिन अब वहां उस पहाड़ को भी चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया। अब जीने की अवस्था नहीं है, वो मार देंगे, मृत्यु निश्चित है। अब मैं क्या करूं? ये अवस्था में जब पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मैं इस आतताइयों के हाथ से मरना नहीं चाहता, मृत्यु निश्चित है, ये लोग मुझे मारेंगे ही, लेकिन मैं इनके हाथों से मरना नहीं चाहता। तू मेरी धर्म पत्नी है, मैं तेरे हाथों से मरना चाहता हूं। माता ने सोचा बात सही है, और कटार लेकर अपने पति को कटार देकर जब चंपत राय, वीर चंपत राय ने वीर गति प्राप्त की, तो वही कटार वहां से निकालकर स्वयं अपने शरीर में देकर वो भी चल पड़ी। छोटा सा बच्चा छत्रसाल
सुनते हैं कि उस समय में उन छत्रसाल को वन देवी के गोद में छोड़ के गए थे, आप इनको संभालो। तो फिर बाद में तो आप सब जानते ही हैं, उनको मामा ने भी संभाला है, बहुत कुछ किया है, कुछ भी था ही नहीं, बस 2-4 सैनिकों के साथ में उन्होंने ये अपनी आतताइयों को समाप्त करने की संकल्प ली। सबसे पहले तो उन्होंने शस्त्र के ज्ञान प्राप्त किया, शस्त्र शास्त्रों की ज्ञान प्राप्त की, अस्त्र शस्त्र की ज्ञान प्राप्त की। इसके लिए योग्य गुरुओं के पास में पहुंचे हैं। और इसी अवस्था में जंगल में छुप के रहते थे। गोरिल्ला युद्ध जो कहते हैं ना, दिन में छुपना और रात में आक्रमण करना, इस तरह से छुप छुप कर आप पन्ना नगरी में जाओगे तो अभी पता चलेगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ के जो हमारे पुजारी लोग हैं वो आपको कहेंगे कि भाई यहाँ इस तरह से छुप कर रहते थे। और फिर जब रात हो जाता था तो फिर वहां से बाहर निकलकर आक्रमण करते थे, दुश्मनों की लीला को समाप्त तमाम कर देते थे। तो इस तरह की उन्होंने युद्ध आरंभ किया था। कुछ सैनिक वहां थे, खाने के लाले पड़ गए, क्या करें, युद्ध में हम बैठेंगे, घर में बच्चे बच्ची भूखे मरेंगे, क्या करेंगे। इस समय में उनके कुछ मामा के पास में जो भी था वहां से भी ले आकर इन्होंने सैनिकों को देना प्रारंभ किया। किसी काम कराते हैं तो फिर उनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवार होते हैं, घर में रहते हैं सबको, तो ये सारे व्यवस्था भी उनको करनी थी। तो एक दिन एकदम सटकट में जा रहा हूं, जंगल में जब पहुंचे तो एक दिव्य पुरुष का दर्शन होता है, और दिव्य पुरुष वहां आकर उनको दर्शन देते हैं और एक सिक्का प्रदान करते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और तब से लेकर 12 साल पश्चात की अभी आपने घटना देखी है। 12 साल के बाद में छत्रसाल महाराज के साथ में तिगुनी दरवाजे में जो मुलाकात हुई थी, उसी के समय में कि बाबा जी राम राम की जो बात आई थी, तो वहां पर छत्रसाल जी को जैसे ही श्री जी ने कहा कि आओ, थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा नजदीक आओ, अब तो मेरे फंदे में पड़ गई, अब जाओगे कहाँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। छत्रसाल ने कहा, 14 लोक में ऐसा कोई मर्द नहीं है कि जो मुझे बस भी कर सके। क्यों? क्योंकि मैं बुद्ध जी का भक्त हूं। क्या प्रमाण है तुम्हारे, तुम बुद्ध जी क्या हो? सिक्का दिखा दिया, देखो ये सिक्का प्रमाण है। तो श्री जी ने अपने आसन से निकाल कर दिखा दिया, सारे के सारे वो सिक्का है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने फिर साजबाज के साथ में राजशाही भेष में आकर सेवा किया, दर्शन किया, और दरबार में जाकर भी बोल दिया, हमारे पास में साक्षात पर ब्रह्म आए हुए हैं, जिनको दर्शन करना हो कर लो। मझरी रानी ने पहले ब्राह्मणी भेष में आकर दर्शन किए, फिर बाद में रानी के भेष में आकर भी उन्होंने दर्शन किया। तो ये छत्रसाल महाराज की एक पावन गाथा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध की है, लेकिन एक सशक्त संतों की आवश्यकता थी, गाइडेंस की आवश्यक होती है। और वो आवश्यक सदगुरु के रूप में जब महामती प्राणनाथ जी उनके जीवन में पहुंचे, तभी ये संभव हुआ। छत्रसाल महाराज, क्या महामती प्राणनाथ जी के पास में ज्ञान नहीं था, शक्ति नहीं थी? सब कुछ था, और वो ज्ञान से और अपने अंदर की शक्ति से भी आसुरी वृत्ति को कुछ नहीं कर सके। जिस तरह से परम धाम में माया नहीं दिखा सकते थे राज्य महाराज, उसी तरह से यह संसार की आसुरियों को ज्ञान से कुछ नहीं होगा। इसीलिए छत्रसाल, ये तलवार पकड़ो और मुल्ली की तरह मुल्लाओं को काटो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जो देश के विरोध में गर्जना करते हैं, जो हिंदुत्व को नाश करना चाहते हैं, उनको तुम्हें काटने के लिए मैं ये तलवार प्रदान करता हूं। फिर तो कहते हैं छत्रसाल ने जो छत्ताल जब ले लिया, तो छिप सारे के सारे जो हॉल के अंदर
छुप जाते हैं सब आसमान में। जब और बाज आता है ना, बाज पंछी, तो सर्प जो होते हैं होल के अंदर छुप जाते हैं। उसी तरह से सारे के सारे सुल्तान छुप गए और इस तरह से शांति धर्म का स्थापना किया। कृष्ण कन्हैया लाल की यह पावन गाथा है। तो अभी यहाँ बड़ा सुंदर ढंग से महिला मंडल युवा पार्क से बहनों ने यहाँ अपनी पात्रत्व बजाई है। ये जितने भी पगड़ी वाली बहन है ये सब एक ही कंपनी की है, कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये जिनके बहुत बड़े बड़े मुंह से देख रहे हैं ना आप, वो गीता बेन है। और मझली रानी के रूप में उनके साथ खड़ी है वो जागृति बेन है। इधर बाईजूराज के रूप में बैठी हुई विदुषी बेन है। प्राणनाथ जी की भूमिका में रह रही यशवी बेन है। और अभी अभी आपको सब सुना रही थी माइक में, वह है प्रीति बेन वादी। तो इस तरह से इन सब, बाकी तो अरेंजमेंट करने वाले कृष्ण बेन वगैरह युवा पार्क के संपूर्ण महिला मंडल को बहुत बहुत बधाई है। तो आइए एक छोटा सा एक प्रवचन रखा हुआ है, हम अब सबसे पहले एक छोटा सा प्रवचन समझेंगे। समाया झरना संजय भाई की लड़की है, संजय भाई की लड़की है समय झरना, माँ की नाम नहीं आई, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं कूद जा। तो ये छोटा सा बहुत मीठा सा प्यारा सा इनका प्रवचन होगा, आपके प्रवचन सुनिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, 5 नौतनपुरी धाम की, श्री जगत आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपते, श्री मोहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। श्री राज्य श्यामाजीनी મહેરથી હું મહારાજા છત્રસાલના વિશે બે શબ્દો કહેવા માંગુ છું। મહારાજા છત્રસાલની આતમ અતિ લાડલી એવી પરમધામની શાકુંડલ સખી છે। માયાના નશ્વર જગતમાં શાકુંડલ સખીની આતમ બુંદેલખંડના ચરપતરાયના પુત્ર મહારાજા છત્રસાલના તન ઉપર અવતરિત થઈ કુર મુસ્લિમ સલ્તનતના સામે અનેકો યુદ્ધ લડી શ્રી વિજય પ્રાપ્ત કરી। મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીની મહેરથી મહારાજા છત્રસાલની આત્મ જાગૃત થઈ મહારાજા છત્રસાલે ધનીની ઓળખાણ કરી। ધની પર તેને તન મન ધન જીવ સર્વસ્વ કુરબાન કરી દીધું, જેથી ધામધનીએ મહારાજા છત્રસાલને અમીરુલ મુમિનનું બિરુદ આપ્યું હતું। પન્નાજીમાં શ્રીજી અને બાઈજીને શ્રી યુગલ સ્વરૂપે સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન કરી મહારાજા છત્રસાલે ને પ્રથમ આરતી ઉતારવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું। મહારાજા છત્રસાલે 6 દિવસના જાગની લીલામાં જાગની કાર્ય પૂર્ણ કર્યું। શું તમે જાગનિકામાં કઈ યોગદાન આપ્યું? સુંદર સાજબ જાતે જ વિચારો। બહુ મહારાજા છત્રસાલ की प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। कृष्ण कन्हैया लाल की खूब खूब आशीर्वाद। અને આપ સૌ આ બેબીના મોઢેથી બહુ સરસ સાંભળી લીધા। આ જીવન આપણે જીવીએ છીએ બહારના સાધારણ લોક જેમ જીવીએ એનો કોઈ અર્થ નથી। અમે ભક્ત છીએ
तो श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोय, ना जानो इन श्वास को फिर आवन हो वे न हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। जे ना होवा छता पण छे, आसमान में बादल होय, सूर्य दिखाता ना होय, सूर्य होय कि ना होय, सूर्य ना होय तो प्रकाश ज ना होय ना, बादल होय पण प्रकाश होय। प्रत्यक्ष ना होवा छता पण जेमनी सत्ता हमेशा होय एवा, જેમની છત્રછાયામાં આ સુંદર કાર્યક્રમ થઈ રહ્યું છે એવા અનંત શ્રી વિભૂષી જગતગુરુ મહારાજ શ્રી કૃષ્ણમણિ મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણ કમળ પ્રણામ। મંદિરના પૂજારીજી આપ સૌ જાણો છો અને સૂચન પણ આપી દઉં, કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી, એટલે જ બધું જ આ મેં પછી રાખેલો। આપ સૌના લાડીલા એવા વર્ષોથી શ્રી 5 નૌતનપુરી ધામ જામનગરમાં રહીને गुजरातीओना दिल में राज कर रहेला एवा अनंत श्री विभूषी जगतगुरु महाराज श्रीना कृपा पात्र आदरणीय अमदावाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में गादी अभिषेक थवानो छे। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो एवा महंत श्री चंदन स्वरूप जी ने प्रणाम, उपस्थित मोहनदास पुजारी जी ने प्रणाम, पुजारी जी अपना निकली गया एमने प्रणाम, शरद जी ने प्रणाम, बाप भाई ने प्रणाम, ट्रस्टी मध्य अब सेवक छो अपना रमेश भाई, जमन भाई, गुलाब जामुन, कृष्ण कन्हैया लाल की। जामुन भाई लगाए तो बता અને પન્નાથી આવેલા ભાઈ, બે ભાઈઓ હતા, એક તો અહીંયા નજર સામે છે, બીજા ત્યાં છે જા, એ બંને ભાઈઓ અને ઉપસ્થિત બધા સુંદર સાથ એત્ર તથથી પધારેલ આપણા મંદિરના નાના ભૂલકાઓ। તમને ખ્યાલ પડી થોડું કઈ? आपको कुछ पता चला कि छोटी छोटी बच्ची जब यहाँ कुछ बोल रही थी तो आपको लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए? हाँ हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब तैयारी करना चाहिए। अभी आपने जिसको तबला सुना था, परमात्मा ने उसको मेरा चेला बनाया, मैंने तबला सिखाया था, पवन उसका नाम है। तो राजीव लोचन जी ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ भजन प्रस्तुत किए थे और पुजारी जी ने सेवा ये सब यहाँ श्रृंगार में अच्छी तरह से व्यवस्था किया, महिला मंडल की माताओं ने भी की है। तो उपस्थित इधर के संपूर्ण मातृशक्ति जो भी है, 3 प्रमुख महिला मंडल लगायत एमना बद्धा सखीओ कृष्ण कन्हैया लाल की बधाने एक साथ प्रणाम ना अभिवादन करूँ छू। मीडिया कर्मी अपना प्रिय भाईओ ने प्रणाम करूँ छू। अने हवे अपना वचमा आजना विषय ने अनुलक्षी करीने हूँ विनवू छू महंत श्री 108 चंदन सौरभ जी महाराज ने। आप 2-5 मिनिट पोताना भाव व्यक्त करशो। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल कर्ण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। परमानंद चिद घन स्वरूप साक्षात श्री राजी श्री श्यामा महारानी ना पावन कोमल कृपा में श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज आपने बधा ज एक खूब शुभ दिवस दिन, जो कि आज गुरुवार भी है, और गुरु के महिमा को अगर सटीक ढंग से जानने के लिए
हमें कोई ऐसा मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में, हम उनका नाम ले सकते हैं महाराजा छत्रसाल। क्योंकि गुरु की जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की, सेवा तो बाद में किया, लेकिन सबसे पहले उनकी परिचय, उनका जो एक कहे कि दिव्य दृष्टि जो थी उनके पहचानने की, वो हमें महाराजा छत्रसाल हमें सिखाते हैं। वो दृष्टि उनकी थी, इसलिए उन्होंने कहा, अभी आप गा रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदिक इच्छित शेष न पावे पार। ये दृष्टि स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज जब मिलते हैं तब वो दृष्टि उनको प्राप्त होती है। इसलिए संसार में कहते हैं ना कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए कोई होते हैं तो वो गुरु होते हैं। तुम सतगुरु दीपक भय क्यों मोहे आप समान। तो आप सभी ने अभी सुना, और एक छोटी नाटिका जो छत्रसाल महाराज जी के जीवन में महामती प्राणनाथ जी किस प्रकार से आए और उनका सानिध्य को प्राप्त किया, आपने देखा। और हम सब ऐसे पवित्र भूमि में बैठे हैं जो कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का आद्य पीठ, आचार्य पीठ, सदगुरु की गादी, ऐसे परम पवित्र स्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम में बैठ करके और इस शोभा को हम निहार रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आचार्य परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हुए, अभी आप सबने जिनकी छोटे शब्दों में उन्होंने छत्रसाल जी महाराज जी का सुंदर जीवन को प्रस्तुत किया, ऐसे परम विद्वान संत स्वामी श्री 108 दिव्य चैतन्य जी महाराज और श्री 5 नौतनपुरी धाम के ट्रस्टीजन और श्री 5 नौतनपुरी धाम के बाईजू महारानी के समस्त सभ्य और युवा पार्क का तो नाम ही क्या लें, देखिए सब आज बैठे हैं, माताएं हैं, लेकिन कोई तो इतने मोह से लेकर के बैठे हैं। आप सबको भी खूब खूब बधाई छत्रसाल महाराज जी के इस पावन प्रागट्य अवसर पर, और दूर तथा नजीक से पधारे हुए समस्त भक्तजन सुंदर साथ जी को भी महाराजा छत्रसाल के इस प्रागट्य महोत्सव का आप सबको खूब खूब बधाई। सुंदर साथ जी, आप सब छत्रसाल के जीवन से, उनके लीलाओं से, उनके जीवन से खूब परिचित है। छत्रसाल जी महाराज केवल एक राजा ही नहीं थे। केवल एक राज करके कोई जाता है तो उसका नाम निशान मिट जाता है, लेकिन छत्रसाल जी ऐसे राजा बने जिन्होंने ऐसे गुरु को प्राप्त किया, जिनका सानिध्य प्राप्त किया, और राज करते करते उन्होंने केवल पन्ना नगरी में ही राज नहीं किया, उन्होंने सारा हिंदुस्तान के जितने भी हैं यहाँ रहने वाले, उनके दिल और दिमाग में राज किया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों? केवल एक राज, देश को चलाने के लिए कोई राज करते हैं तो वो मिट जाते हैं, लेकिन छत्रसाल जी ऐसे राजा बने जिन्होंने सदगुरु जी की सेवा की और सदगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, यहाँ सदगुरु का मेंशन होता है श्री प्राणनाथ जी महाराज, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भक्तजन को, अपने जितने भी वहां पर थे प्रजाजन, उनको परमात्मा की भक्ति की और भी मोड़ दिया। इसलिए वो कहते हैं मेरे दरबार में, मेरे राजमहल में कौन आए हैं? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सन कादिका आदिक इच्छित शेष न पावे पार। देखिए वो
कौन आए हैं? जो आज तक ध्यान कर रहे हैं, देवी देवताएं जितने भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए, वही तो स्वरूप इस संसार में इस देह धारण करके मेरे द्वार में, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक शिष्य को गुरु के पास जाना पड़ता है। आप यहाँ विचार देखिए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में महामती प्राणनाथ जी महाराज और छत्रसाल के मिलाप में जो एक प्रेम छुपा है, एक जो छुपा है, निष्ठा छुपा है, उसको देखिए। कोई शिष्य गुरु के पास जाना पड़ता है, लेकिन छत्रसाल ऐसे धन्यभागी शिष्य है, धन्यभागी राजा है, जो उनको ढूंढते ढूंढते उनको पहचान करने के लिए वो परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज जामनगर से वो पन्ना जी तक पहुंचे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनके द्वारा कुछ कराना था। आप उस समय की, उस जब समय था, आप विचार करिए, अभी हिंदू राष्ट्र है, आज हम हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं, फिर भी चारों ओर से हिंदू राष्ट्र को आज कितने दुखी कर रहे हैं, कितने संताप दे रहे हैं। परंतु उस समय तो यहाँ का राजा स्वयं औरंगजेब बादशाह था। वहाँ हाकिम भी होंगे, जो भी होंगे, कर्मचारी होंगे, सिपाही होंगे, तो वो सब क्या था? वो मुसलमान लोग में थे। उस समय में महामती प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आत्माओं को ढूंढना चाहिए जो हिंदू धर्म का रक्षण करे। और उस समय कई राजाओं से मिलते हैं। आप उदयपुर जाएंगे, औरंगाबाद जाएंगे, अभी नाम मेंशन हुआ था, और जाते जाते छत्रसाल से मिलते हैं। उनने देखा ये पूरा पात्र है कि औरंगजेब के सामने कोई युद्ध नहीं कर सकते, कोई बोल भी नहीं सकते, सब छुप जाते हैं, लेकिन ये जो छत्रसाल जी है वो सामना कर सकता है। इसलिए उन्होंने, और छत्रसाल जी महाराज जी को देखिए कितना प्रेम की बात है यहाँ। एक तो आत्मा जागृति भी है, दूसरा राज सत्ता को बचाना भी है, तीसरा हिंदुत्व को रक्षण करना भी है। इसलिए मैं तो कहता हूं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सब कुछ छुपा है। जो भी आप ढूंढेंगे वो सब कुछ यहाँ मिलता है। इसलिए उनने कहा, हे छत्रसाल जी, तुम तो राजा हो, लेकिन तुम केवल पन्ना नगरी में यहाँ पर छुपे हुए हो, लेकिन तुमको तो ऐसा बनना चाहिए जैसे कि आपको भारतवर्ष याद करे, क्योंकि उसका पूरा सत्ता भारतवर्ष तो नहीं, बाहर भी चलता था। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज जी ने आत्मा तो जागृत की, उनकी आत्मा की पहचान की। और आत्मा का नाम क्या था छत्रसाल जी का? आप विचार करना, परमधाम की शाकुंडल सखी। तो इस धरातल पर आकर के उनको तो केवल माला जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, बंदगी करना, हम तो यही सोचते हैं ना। लेकिन महामती प्राणनाथ जी कहा, हे छत्रसाल, तुम भले शाकुंडल सखी हो, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, तब तब कोई ऐसे प्रकट होते हैं जो अधर्म को हनन करके धर्म का स्थापना करते हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ आज आना पड़ा। हे छत्रसाल, तुम जागो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और उनको क्या किया? महामती प्राणनाथ जी महाराज ने उनको तरवाल सौंप दिया। क्या? जिसका नाम था विजय। जब ऐसे महामती प्राणनाथ जी उनको तरवाल देते हैं, आप विचार करना, क्योंकि जब ऐसा होता है कि ऐसे महापुरुष जब इस संसार पर आते हैं, वो जात पात भेद वर्ण देखते नहीं, वो तो सत्य का रक्षण करने के लिए ही वो यहाँ पर आते हैं। इसलिए कहा, तुम विजय भव। जैसे उन्होंने, आप देखिए उस समय उनके पास 5 घोड़सवारी, एक तो 5 घोड़सवारी और औरंगजेब राजा के विशाल सेना। इसलिए 5 घोड़सवारी को लेकर के रात्रि में वो गोरिल्ला की भांति आप सुन रहे थे, वो जा करके औरंगजेब के सैनिकों से युद्ध कर से। कहा 5, विचार तो करना। लेकिन उन 5 के अंदर में क्या था? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति स्वरूप वो आए थे। इसलिए उनके पास विजय नाम की तरवार उन्होंने प्राप्त किया था, प्रदान किया था।
इसलिए जहां परमात्मा की कृपा हो, जहां धनी की कृपा हो, तो वहां कुछ और कर नहीं सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते ने, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। हाँ, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जहां परमात्मा रक्षणहार हो, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो, परमात्मा का कर कमल उनके मस्तक पर हो, दुनिया क्या बिगाड़ सकती है सुंदर साथ जी। इसलिए हमें ये छत्रसाल जी के जीवन लीला से दिखना चाहिए। और वो गए और जाकर के युद्ध किया, आप विचार करना। और उन्हें प्राप्त भी तो ऐसे नहीं किया आप थोड़ा आगे बढ़िए, उन्हें ऐसे ही प्राप्त किया। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए तप करना पड़ता है, उसके लिए निष्ठा भी होनी चाहिए। जो छत्रसाल जी महाराज ने कहीं बैठ करके तप नहीं किया। तप का मतलब होता है कहीं जंगल में जाकर के तप करो महाराज, वो भी तप है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए छत्रसाल जी महाराज जी ने 12 साल तक तप किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। केवल माला लेकर नहीं, युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में वही है, कब मुझे वो बुद्ध स्वरूप, वो निष्कलंक स्वरूप, उनका दर्शन मुझे मिलेगा। जहां भी जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पहुंचते हैं, उस समय भी वो सिक्का को देखते, कब मुझे मिलेगा। नेत्रों से आंसू धारा गिर पड़ते हैं, परंतु जब अश्रु धारा गिरते हैं ना, तभी परमात्मा करीब होते हैं। देखना, तभी करते, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। इसलिए कहते हैं, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि कब मुझे दर्शन मिलेगा। तो आप 12 साल के निष्ठा और साधन के प्रतिरूप प्रतिफल उनको क्या मिला। अपने घर में महामती श्री प्राणनाथ जी आए और उनको आशीर्वाद दिया सुंदर साथ जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इतने इतने ऐसे लीला जो है वो छुपी हुए, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तो कहते हैं, ऐसे महापुरुष को, ऐसे मेरे धनी को आप भोग गाते हैं। बाय आंख मेरा बेरा बेरा फरक क्यों, जीव हर क्यों मेरे वारे। अंतिम में क्या कहते हैं, राखू में रसिक रमाए आप गृह अनते। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे सर्व जो पधारे हैं, तो उसको मैं क्या करूं, राखू में रसिक रमाए आप गृह। रमाए अपने घर में। देखिए उनकी सेवा, छत्रसाल जी की सेवा हम अष्टप्रहर बीतक में सुनते हैं, कितने सेवा करते हैं। जब स्वामी लालदास जी महाराज सेवा कर रहे हो और सुंदर सा सेवा कर रहे हैं, कुछ भी सेवा हो, जब छत्रसाल जी महाराज आते हैं, तब मैं राजा नहीं, मैं इस राज्य का राजा नहीं, मेरे को सब प्रणाम करते, ऐसा भाव नहीं। वो चरण में बैठ जाते हैं, महामती प्राणनाथ जी के चरणों में, और चरणों में बैठ करके और वो अपने हाथों से सेवा करते हैं। कभी तो चमर डोलाना हो, कहीं बाहर जाते समय, कहीं छतरी करना हो, कहीं वेशभूषा पहनना हो, कहीं पगड़ी पहनना हो, एक राजा और किसको अपने धाम के धनी स्वरूप मान करके उनको ऐसी सेवा की है। इसलिए कहते हैं, राखों में रसिक रमाए आप गृह। दुख दे करके नहीं, आनंद से। जब गुरु आनंद होंगे, जब परमात्मा को वो मुस्कुराहट हो वाला जो चेहरा हमारे सामने होंगे, तब हम खिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, राखों में रसिक रमाए आप गृह अनते जान देव। हे श्री जी महाराज, हे पार ब्रह्म स्वरूप, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रहिए। हम हर पल हर घड़ी आपके जो दर्शन है मैं करता रहूं। राखू में रसिक रमाए आप गृह अनते जान देव। अगर छत्रसाल जी के प्यारे सुंदर बर अनेक भांति सुखली, ये छत्रसाल की पद है, छत्रसाल का पद है। देखिए, इसलिए कहते हैं गुरु को पहचानना चाहिए, परमात्मा को पहचानना चाहिए। इसलिए गुरु ने भी उनको क्या किया, हे छत्रसाल, तुम शरीर से इस संसार के राजा हो, लेकिन आत्मिक रूप से तो तुम साकुंडल सखी परमधाम की हो। एक तरफ संसार में राज करो,
दूसरी ओर ये परम नाम की जो वाणी है, परम नाम का जो ज्ञान है, उसको देख करके सुंदर साथ को दिल में राज करो। ये दो राज महामती श्री प्राणनाथ जी ने मेरे छत्रसाल जी को अर्पण किया था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए छत्रसाल जी की जीवनी में हम जितना भी गुणगान करें वो कम ही होगा। उनके जीवन में जितने भी शब्द हम ले वो कम ही होगा। क्योंकि इसलिए तो कहते हैं, लालदास जी महाराज जी ने कहा है ना, जो सेवा छत्रसाल ने किया न भूत न वर्तमान न भविष्य में कोई करने वाला होगा। इसलिए मेरे राज जी ने भी उन्हें क्या किया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जीत जीत घोड़ा पग दरे तित तित फते होए। इसलिए देखिए वो गुरु और शिष्य का जो मिलन है, उसका मिलन है, उसको हम छत्रसाल जी के जीवन लीला से जान सकते हैं। सुंदर साथ जी, छत्रसाल के बारे में तो जितना भी हम गुणगान करें वो कम है। लेकिन जो उन्होंने शिक्षा हमें दी है, जो प्रेम दिया है, जो एक दिली का भावना दिया है, वो हमको धारण करके हमें आगे बढ़ना है। यही तो छत्रसाल जी ने हमें सिखाया है। तो छत्रसाल जी के प्राकट्य के इस पावन अवसर पर आप सभी को खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की प्रणाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पहले दाता हम भय गुरु को दीन्हों शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बक्सी। छत्रसाल महाराज પોતાના ખજાનામાં કંઈ રાખ્યા હતા, બધું આપે એટલે રંગ બની ગયા, મહારાજા બની ગયા, રાઈટ। તો અત્યારે સેવા ભાવની વાત, છત્રસાલ મહારાજ અને ગુરુ પ્રત્યેની જે ભાવ છે, ધીમેથી કહું, કોઈને કહેતા નહીં પાછો, मैं बहुत मंद आवाज में बोल रहा हूं, किसी को मत कहना, हमें भी सेवा करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। नौतनपुरी धाम निर्माण हो रहा है, ठीक है, और ये किसका है? हमारा है, हम नौतनपुरी वासियों का तो खास। बाकी संपूर्ण प्रणामी इलम का ये है, चाहे अपने आप को निजानंदी बोले या प्रणामी बोले, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व कुछ भी बोले, है तो मूल यहाँ का है। नौतनपुरी धाम मूल है और मूल की सेवा का अवसर अभी हमें प्राप्त है, तो हम इस सेवा को भी अवश्य आगे बढ़ाएं। युवा पार्क महिला मंडल ने बहुत सेवा की है, परमिला बेन आ दूसरी पार्टी इन्होंने भी सेवा की है। अहिया बैठेला माताओं में गाम घर में कूવો થાય, કેટલા લોકો જોયા છો? કૂવો જેમાંથી પાણી ભરાયેલો હોય, પાણી કાઢે છે, શું કહો એમની તમે લોકો? કૂવો જ કહો ને? હા, એમાં તમે રોજ પાણી કાઢો તો ઉકાઈ જવાનું, હા, અને ના કાઢો તો શું ઉપર આવી જવાનું, ઉભરાઈ જવાનું? કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી। ધર્મમાં આપતા એવું જ પૈસું છે। ધર્મમાં અમે જ્યારે દાન કરીએ ને, એ કૂવો જેવો છે, તમે જેટલો કાઢો એ ઓછું થવાનો નથી। તો આજ અહીંયા શ્રી રાજ ભરોસે એમ તો જોઈ લીધા તમે, કાનાલુસના બહુ રાજ્યના લાડીલા સુંદર શાહજી, પ્યારા સુંદર શાહજી છે, પોતાના નામ આપવા ઈચ્છા નથી રાખતા, એટલે રાજ ભરોસે કાનાલુસ તરફથી આ સેવામાં 5555 રૂપિયા પ્રાપ્ત થયું છે। હવે આપણે અહીંયા સુંદર ભજન અને ભોજન। बोली है धाम की चमार, जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की चमार, जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की चमार, जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की चमार, जगन प्राणनाथ जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए। सबसे पहले श्यामा जी आए। सबसे पहले
फिर से देखाया ब्रजराज जगन प्राणनाथ जी आए। खोली है धाम की जमा जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमा जगन प्राणनाथ जी आए। नवतनपुरी से पन्ना जी तक नवतनपुरी से पन्ना जी तक श्री प्राणनाथ जी ने पैदल चल कर श्री प्राणनाथ जी ने पैदल चल कर साथ जगाए बेसुमार जगन प्राणनाथ जी आए। साथ जगाए बेसुमार जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमा जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमात जगन प्राणनाथ जी आए। इंद्रावती जी खाए है नारा इंद्रावती जी का यही है नारा। लोला बंगला साथ है प्यारा। लोला बंगला साथ है प्यारा। पोछाऊ पकड़ के हाथ जगन प्राणनाथ जी आए। पहुँचाए पकड़ के हाथ जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमा जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमात जगन प्राणनाथ जी आए। श्री प्राणनाथ जी को रूह है प्यारी। श्री प्राणनाथ जी को रूह है प्यारी। रूह है पिया पर जाय बलिहारी। रूह है पिया पर जाय बलिहारी। आशिक मसुक की बात जगन प्राणनाथ जी आए। आशिक मसुक की है बात जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमा जगन प्राणनाथ जी आए। बोले है धाम की जमात जगन प्राणनाथ जी आए। राज रस भर सरयो आज मोरे आंगन में। राज रस बरसरयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रहियो आज मोरे आंगन में। परदे हटे माया के मन से। परदे हटे माया के मन से। रोह मिली
संग नाच रहियो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रहियो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रहियो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस झलक रहियो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रहियो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस झलक रहियो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस छलक रहियो आज मोरे आंगन में। खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ मनाओ ओ खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। ओ हर कोई ये हो बोले मेरा पिया जी आए। ओ ये हो बोले मेरे पिया जी आए। हर कोई ये हो बोले मेरा पिया जी आए। ये हो बोले मेरे पिया जी आए। चारों तरफों फूल बरसाओ। चारों तरफों फूल बरसाओ। ओ चारों पर देखो लो मेरे पिया जी आए। चारों पर देखो लो मेरे पिया जी आए। मेरे पिया जी आए। खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। ओ खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। ओ खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। ओ खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। हर कोई ये हो बोले मेरा पिया जी आए। हर कोई ये हो बोले मेरे पिया जी आए। पिया जी का आसन लगाओ। 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 आसन ऊपर पिया को बैठाओ। आसन ऊपर पिया को बैठाओ। आसन ऊपर पिया को बैठाओ। ऊपर पिया को बैठाओ। दिल का हाल सुनाओ मेरा पिया जी आए। दिल का हाल सुनाओ मेरे पिया जी आए। दिल का हाल सुनाओ मेरा पिया जी आए। दिल का हाल सुनाओ मेरे पिया जी आए। खुशियाँ मनाओ सारे खुशियाँ मनाओ। 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 हर कोई ये हो बोले मेरा पिया जी आए। हर कोई ये हो बोले मेरे पिया जी आए। पिया जी ने मेहरा कितिया। पिया जी ने मेहरा जबितिया। पिया जी ने मेहरा कितिया। मेहरा जी ने मेहरा कितिया। हमने झोली भर भर लुटिया। 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 तुम भी भर ले जाओ मेरे पिया जी आए।
महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छत्रसाल महा